کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ زندگی ادھر سے جینے کا طریقہ مل جاتا ہے اسلامی طریقے سے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھی جگہ ہے، ادھر جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جاتا ہے۔ آج کے مدنی مذاکرے میں روحانی علاج بھی سیکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھریلو معاملات بھی سیکھے۔ مدنی مذاکرے میں ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں جو مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بندے کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنی اصلاح جب ہوگی تو لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ جب ماشاءاللہ ہم فیضان مدینہ میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سے جذبات آتے ہیں، دینی کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ امیر اہل سنت ماشاءاللہ بہت ہی علمی گفتگو فرماتے ہیں، تو سن کر ذوق ملتا ہے نیکیاں کرنے کا، الحمدللہ۔ قربانی کے بارے میں معلومات لی ہے، یا جیسے حاجی زمزم اتاری مرحوم، ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ملی۔ حضرت صاحب نے بہت اچھی بات سکھائی ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر اپنے گھروں میں ہمیں یہ چیز ماحول ہے ہمارا کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت صاحب کہ بچہ بدظن ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، بہت چیزیں ہیں معاشرے میں، بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے اس چیز کا۔ آج کے مدنی مذاکرے میں گھریلو معاملات کیسے حل کرنے چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ امیر اہل سنت نے جس طرح تربیت فرمائی ہے ہماری، میں کہتا ہوں کہ اتنی عمر ہو گیا آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کی امی کی کس طرح بات کرنی ہے، یہ پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے شیخ طریقت امیر کو سلامت رکھے اور ہمیں پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری جو تربیت فرمائی، اور دوسرا یہ جو دائمی قبض کے متعلق جو ہمیں جو نسخہ عطا فرمایا، روحانی علاج جو عطا فرمایا، الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہمارے لیے پورے ہفتے کا بوسٹر ہے، اور ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں مدنی مذاکرے کا۔ آج جیسا کہ امیر اہل سنت نے ایک بڑی اچھی تربیت فرمائی کہ جو ہے نا، جیسے لوگ اپنی شاپنگ، عید کی شاپنگ کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں، ویسے ہی جو ہے نا قربانی کے لیے بکرا پیڑی میں جو ہے نا پوری فیملی کو لے کے جاتے ہیں۔ بے پردگی کا ماحول بھی ہوتا ہے، واقعی میں ایک عقل مند بندے کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ساری فیملی کو ساتھ لے کے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار وغیرہ نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں، کھا لیں، پی لیں۔
लेकिन मुनासिब ये है कि एहतिकाफ की नीयत सवाब के लिए करें, न कि खाने पीने के लिए। और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब बेशक खाए पिए, ये इफ्तार करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1446 हिजरी के जुमादल आज 1446 हिजरी के ज़ीक़ाद शरीफ की 27वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना की रिसाले ज़िया दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी नंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27। क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर 2 मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3 मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बंद पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मेरा सवाल ये है कि अमूमन हमारे घरों में गुस्से में वालिदैन अक्सर बद्दुआएं दे देते हैं बच्चों को, औलाद को, या फिर दोस्त अहबाब एक दूसरे से गुस्से में तकरार में कह देते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, या ऐसे कुछ कलमात अदा कर देते हैं। तो ये कहना दुरुस्त है और इसमें क्या वाकई ही ऐसी बातों में कोई असर होता है? हकीकत में इसका क्या तासुर है, ये ज़रा बता दीजिए। हाँ, बच्चों को तो माएँ कोसने देती रहती हैं, बाजों की आदत होती है। तो ढुड़ पड़े तो मर पड़े तो फट पड़े तो इस तरह तेरा जनाजा उठे, तेरा मुंह ना देखूं वगैरह। तो इस तरह की बद्दुआएं ना दी जाएं, ये बहुत खतरनाक होती है। अगर यही दुआ कबूल हो गई और ये बच्चा जो है इस पर इसके असरात मुरतब हुए और वो मर गया या जख्मी हो गया या बीमार पड़ गया, तो सदमा माँ को तो सबसे ज्यादा होना है। फिर मतलब ये कि दर पछताने का वक्त आएगा तो कबूलियत की घड़ियां होती हैं, तो अच्छे अल्फाज ही मुंह से निकाले जाएं। जैसे इसको कोसना ही है बिलफर्ज, तो कोसने की जगह ये कि तुम मदीने जाए, हाजी बने, इस तरह का मतलब है। इसको किसी पर भी गुस्सा है तो इस तरह अगर याद आए ना कि तुझे अल्लाह 7 हज नसीब करे। ये पुराने बड़े बूढ़ों की दुआएं ये थी, बड़ी बूढ़ियां, तुझे अल्लाह 7 हज नसीब, खुश होती थी ना, अल्लाह तुमको 7 हज नसीब करे। तो इस तरह की अगर बातें बोलने के अगर जहन बनता है, आदत पड़े, अल्लाह करे, अल्लाह तुझे पक्का नमाजी बनाए, अल्लाह तुझे तहज्जुद गुजार बनाए, तंग मत कर, अल्लाह तुझे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। इस तरह अगर अल्लाह करे कि जहन बन जाए और बोलना आ जाए तो मदीना। वरना ये कि वाकई कोसने देते हैं और बात बात पे झाड़ना, डांटना, नुकसान दे। वैसे भी इस तरह की कोसनों से भी बच्चा थोड़ी मानता है, या बार बार डांटने झाड़ने से भी थोड़ी मानता है। वो तो ढीठ हो जाता है, वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, आदी हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वैसे इसमें आपकी बात से तो हर तबका रहनुमाई ले। मुझे आपकी गुफ्तगू से हमारे मकतबतुल मदीना के स्टॉल की एक बात याद आ रही थी, बहुत पुरानी बात। जब नया नया फैज़ान मदीना में इज्तिमा शुरू हुआ था तो स्टॉल पर काफ़ी रश होता था। तो मैं भी कुछ किताब ये कुछ लेने गया हूँगा, तो एक छोटी उम्र के तो बार बार तंग करा दिए, ये कितने का है, ये कितने का है।
تو اسٹال پہ جو کھڑے تھے وہ کہہ رہے اللہ تیرا بیڑا پار کرے، ایسا بیٹا ایسا نہیں کرو. تو عام طور پہ تو کہا جاتا ہے تیرا بیڑا غرق ہو، تو تیرا بیڑا پار ہو ایسا نہیں کر. تو یوں آپ کی بات سے کہ وہ جو تنگ کرنے والوں کو کچھ اس انداز سے دعائیں دی جائیں، نہ کہ اس کو بد دعا دی جائے. ماشاء اللہ، یہ مکتبۃ المدینہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. پیارے امیر علیہ سنت، کسی نے اگر ہم سے کوئی چیز عارضی طور پر لی اور وہ دینا بھول گئے تو ان سے اپنی وہ چیز واپس کس طرح مانگیں کہ اسے شرمندگی بھی نہ ہو؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. جو بھی مناسب طریقہ ہو اس طریقے سے مانگنے میں حرج تو نہیں، اپنا حق ہے آپ کا. اور مجھے کبھی کوئی دے نا تو وہ تو ضرور مانگ لیا کہ بعض اوقات میں نے اس پہ پریشانیاں اٹھائی ہیں. کسی نے قلم دے دیا مجھے کچھ لکھنے کے لیے، وہ بھی قصدن بھی دیتے ہوں گے کہ سب کو بتا سکیں کہ یہ استعمال کیا ہوا فلاں کا. اب میں رکھ لوں جیب میں، اب وہ مروت میں بولے نہیں، بعد میں دیکھوں گی آیا کہاں سے، یہ ہے کس کا، اب ڈھونڈو ہوئے مالک کو. یوں بڑی ہونے کا پریشانی ہوتی ہے. میری لائبریری میں کبھی کبھی کوئی کتاب نکلتی ہے نا تو کسی کا نام لکھا ہوتا ہے. اب مطلب ایڈریس تو لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا ہے، فون نمبر لکھا ہو نہیں لکھا ہو، تو اب میں پریشان، اب میں کروں کیا، اس کا ہے کسی کا نام، یہ کسی کتاب ہے. اچھا بعض بولے والے ہوتے ہیں یہ اپنا نام لکھ کر بھی مجھے دیتے ہوں گے تحفے میں، خالی نام لکھ دیا کہ یادگار رہے گی میری. اب میں پریشان کہ یار یہ کوئی میرے پاس آ کر بھول تو نہیں گیا، اس طرح بھائیوں کا آنا جانا تو ہوتا ہے نا، اب کیا ہوگا. تو اسے ہوا ہے میرے ساتھ کئی بار کہ میں پھر کسی اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ یار اب ڈھونڈو اس کو. پھر وہ لقطے کا جو بھی شرعی مسئلہ ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور کیا کروں میں. اس لیے مجھے کوئی چیز دو نا تو آپ شرمائے نہیں کرو، آپ دے دیا کرو. اور اگر معاف کرنا ہے تو وہ بھی مجھے بولنا پڑے گا نا کہ بھائی آپ کو جو میں نے قلم دیا تھا نا وہ آپ کا ہوا، ورنہ میں دیکھوں گا تو میں تو ڈھونڈوں گا نا آپ کو. اب آپ نے دل ہی دل میں معاف کر لیا تو وہ کیسے پتا چلے گا. یوں مانگ لینا چاہیے کہ اگر کوئی حساس طبیعت ہوئی، ہونی بھی چاہیے نا، آخرت کا معاملہ ہے. کسی کی چیز بھول کر رکھ لی تو وہ استعمال کر رہے، پھر یاد آیا تو دینی تو پڑے گی نا، ہے تو اسی کی. وہ نہ رہا تو اس کی جو بھی وارث ہیں ان کو دینی ہوگی. پھر بھی کوئی نہ ملا تو پھر اس کو رائے خدا میں دے دے. اس طرح مطلب یہ کہ بتا دینا اچھا ہے. ہاں بتائے انداز اچھا ہو، ارے بھائی میں نے تجھے گفٹ نہیں کیا، کام عارضی طور پہ دیا تھا ٹیمپریری، لاؤ. یہ تو پھر شرمندہ ہوگا. وہ اچھے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جس میں عقل ہے اس کو تو سمجھ پڑتی ہوگی کون سے الفاظ اچھے ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس قسم کی اور بھی جو احتیاطیں ہیں تو ایک مکتبۃ المدینہ کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے امیر اہل سنت کی احتیاطیں، اور خاص کر مدنی مذاکرے کے جو سوال جواب پر آپ مکتبۃ المدینہ کے رسائل دیکھیں گے تو ان میں آپ کو اس طرح کے سوالات اور اس پر جو امیر اہل سنت کی جو تربیت ملتی ہے تو یہ بڑی خوبصورت آپ کو تربیت ملے گی کہ کس طرح سے انداز اختیار کیا جائے. اور یہ جو پرایا مال ہوتا ہے، مفتی صاحب اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جو بعض اوقات اس طرح سے جو پڑی ہوئی جیسے لقطے کا جو حکم فرمایا، اگر اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. لقطہ اسے کہتے ہیں جسے کہیں کسی کو کوئی چیز گری پڑی مل گئی اور اس کے مالک کا اس سے پتہ نہیں، تو اس نیت سے اٹھانا جائز ہے کہ میں اس کو ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا. اپنی ذات کے لیے اٹھانا جائز نہیں، کہ اگر اپنی ذات کے لیے اٹھا لیا تو اب حکم یہی ہوگا کہ مالک کو تلاش کرے، اور اتنا عرصہ گزر جائے کہ مالک نہیں ملے گا یا مالک اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اس کو کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دے. اور اگر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھائی تھی بلکہ اس نیت سے اٹھائی تھی مالک تک پہنچائے گا، لیکن مالک ڈھونڈنے کے باوجود، تشہیر پبلسٹی کے باوجود اسے نہیں مل رہا، عرصہ گزر گیا،
تو اب اس چیز کو وہ مطلب صدقہ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی مصرف خیر یعنی مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ امجد علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز اکیلے پڑھنے کی صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ آدھی یا تھوڑی سی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض کی تیسری چوتھی میں بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پوری پڑھے، اور اگر منفرد ہے اکیلا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سورت بھی ملائے، ورنہ یہ کہ 3 سبحان اللہ کہہ لیا یا 3 سبحان اللہ جتنا چپ کھڑا رہا تب بھی مطلب ہے لے کہ نماز درست ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، دوران نماز سو جانے والوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ سوال جی، سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ دوران نماز سو جانے والوں کی نماز کا حکم کیا ہے، جو نماز میں سو جاتے ہیں؟ دوران نماز اگر سوتے میں پورا رکن گزر گیا تو اس رکن کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ سجدہ پورے کا پورا اس نے سوتے میں گزار دیا، تو اب یہ کہ وہی سجدہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 2 سجدے کیے لیکن ایک سجدہ پورا سوتے میں گزرا، تو اب یہ کہ 3 سجدے ہوئے یوں ظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں یہ 2 سجدے ہوئے کہ اس کو دوبارہ کرنا اس پر فرض تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ باپ کا اپنی شادی شدہ بیٹی کو قربانی کا جانور گفٹ کرنا اور اپنے شوہر کے کہنے پر بیٹی کا اپنے باپ سے قربانی کا جانور لینے کا مطالبہ کرنا، ان دونوں صورتوں میں آپ کی کیا رائے ہے؟ باپ بیٹی کو گفٹ کرتا ہے قربانی کا جانور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو کر سکتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی گفٹ کر سکتا ہے قربانی کا جانور۔ اچھا، اب یہ کہ بیوی کا شوہر سے مطالبہ کہ مجھے قربانی کا جانور دو، اب اس میں ایسا ہے کہ دونوں کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دوسرے سے مانگ کر چیزیں لیتے ہیں اور قیمتی چیزیں بھی لے لیتے ہیں، اور آپس میں ترکیب ہے ان کی۔ جب تو مانگ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ یہ کہ نہ مانگے، اور اصرار تو بہرحال نہ۔ اس دور میں تو قربانی کے جانور کا مطالبہ بھی نہ ہی کرے، کہ بہت ظاہر ہے کہ اب دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے قربانی کے جانور بھی مہنگے ہو گئے، تو وہ نہ مانگے، ورنہ وہ مانگنے کی صورت وہ میں نے آپ کو جو عرض کی نا، اس میں حرج نہیں تھی کہ اگر دونوں کے انڈرسٹینڈنگ حرج نہیں ہے۔ اب مہنگا جانور ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ شوہر ہے بھی اتنا ہی مالدار، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر مانگ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر یہ صورت ہو کہ جیسے شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے والد سے آپ یہ جانور کا تقاضا کریں، سوال کریں، تو اب بیٹی سوال کرتی ہے اور باپ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو اس صورت میں بیٹی کا گھر کہیں خراب نہ ہو جائے، آپس میں کوئی بدنظمی والی صورت نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ انڈرسٹینڈنگ تو آپ نے پہلے ارشاد فرما دی، ایک دوسرا پہلو بھی اس میں نکل سکتا ہے کہ عمومی طور پہ اس طرح مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے والد سے کہیں کہ ہمیں قربانی کا جانور دو، تو اس پہلو پر آپ کیا فرماتے ہیں؟
अब अगर शोहर मुतालबा कर रहा है, बेटी भी ये कह रही है, बाप को पता है कि बेटी अपने लिए नहीं मांग रही बल्कि शोहर के लिए मांग रही है, वरना वो शोहर जो है वो मुझे तंग करेगा, मुझ पर जुल्म करेगा वगैरह, तो ऐसी सूरत में बाप ने दिया या कोई भी शय दी, कोई भी माल दिया, तो वो चूंकि उसके शर से बचने के लिए दिया है, तो शर से बचने के लिए जो दिया जाता है माल, वो रिश्वत कहलाता है। यूं फिर ये कुर्बानी के तौर पर गया, और बाप गुनाहगार नहीं होगा क्योंकि वो अपनी बच्ची का घर बचाना चाहता है, लेकिन शोहर लेने वाला जो है ये गुनाहगार होगा। तो यूं तो आजकल बहुत मुतालबे होते हैं। अब आम का सीजन है तो आम की पेटियां देनी पड़ती हैं, और आला दर्जे के आम, एक पेटी से भी शायद हर जगह गुजारा नहीं होता होगा, कहीं कहीं दो दो तीन तीन पेटियां, और बिल्कुल बेहतरीन और बाजार की फर्स्ट क्वालिटी का, कि अगर इनको कमजोर आम दिए तो ये कुड़कुड़ करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, नहीं दिए तो फिर वो तो खैर ही नहीं है, बेटियों घर भेज देंगे कहीं, समझे, कि तेरा बाप इतना कंजूस है, तेरी माँ इतनी मतलब कंजूस है, हमको आम नहीं दिए। तो इस तरह के शर से बचने के लिए ऐसे शरीरों को, दामाद शरीर है या सास शरीर है, मतलब घर बचाना है, घर सास की गड्ढा बनाएगी तो बेटी तो खराब हो जाएगा। तो यूं मतलब ये कि ये वो है सूरत कि जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दी, तो ये रिश्वत है। इस तरह ये आम भी रिश्वत में जाएगा। इसी तरह हज पर जा रहा है तो इसको बेहतरीन हदीया देना पड़ेगा, भाई सूट पीस भी देना पड़ेगा, तो बहुत कीमती तस्बीह हाथ देनी पड़ेंगी, तो इतना इतना मतलब इन्हें टाफियाँ, तो इतना इतना माल इनको देना पड़ेगा ससुराल वालों को। अगर नहीं देते तो ये तो मेरी बेटी का जीना आराम कर देंगे। तो अभी हाजी साहब ने जो दिया ये तबर्रुक नहीं है इनके हक में, ये भी रिश्वत है। तो ये रिश्वत कई जगह बन जाती है, शर से बचने के लिए जो दी जाती है तो ये रिश्वत बन जाती है। इस तरह दोस्त है, भाई आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने नेमत दी, अब वो मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। अब दोस्त ऐसा है कि नहीं खिलाओगे तो ये हर जगह तंग करता रहेगा, लोगों को बोलेगा, दोस्तों में बदनाम करेगा कि यार बड़ा कंजूस है। ये खुशी का मतलब है मौका, यार मेरा मुंह मीठा नहीं करवाया इसने, बेवफा दोस्त है यार। तो इस तरह कीमतों का सिलसिला, और ये दोस्त अगर इसका मुंह बंद करने के लिए मिठाई वगैरह देता भी है तो ये मिठाई उस दोस्त के हक में रिश्वत है। ये गौर कर लिया, आम तौर पे बोलते हैं मिठाई खिलाओ, मंगनी हुई मिठाई खिलाओ, फुला हुआ मिठाई खिलाओ, ये आम है। लेकिन ये देख लें कि या तो ऐसी फ्रेंडशिप है कि एक दूसरे के इस तरह मांग मूंग के लेकर खाते पीते हैं जब तो कोई मसला नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है और ये कि यानी कि बिल जबर एक तरह का ये जबर है, अगर ये गन पॉइंट पर नहीं ले रहे लेकिन ये जबर है कि बदनाम करेगा, तो ये रिश्वत बन जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग है तो रिश्वत नहीं है। लेकिन इसमें गौर करना, अंडरस्टैंडिंग में यार सब चलता है, हमारी तो बहुत तरकीब अच्छी है, मैं तो मांग के खा लेता हूँ इससे, अब ये मांग के खा लेता हूँ, ये चलेगा नहीं। कि वाकई अगर वो बुरा मान रहा है, नागवारी की सूरत में वो अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए खिला पिला रहा है, तो ये रिश्वत है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जितना खाया वो उगलना पड़ेगा। जी हाँ, निगल लिया ना, अब उगलेंगे यूं कि जो भी माल बतौर रिश्वत लिया गया वो इसकी मिल्क में आता नहीं है लेने वाले की। ये डाकू जिस तरह छीनता है, चोर चोरी करता है, तो माल का मालिक तो बनता नहीं है, तो इसी तरह रिश्वत लेने वाला उस माल का मालिक नहीं बनता। ये जिसका उसको लौटाना फर्ज है उस पर वो तौबा भी करे, दिल आजारी हुए तो माफी भी मांगे। ये जितने रिश्वत खोर है ना, ये खुसूसन गवर्नमेंट के जॉब के लिए लोग मरते हैं, उसमें अंधी वो चलानी हो चांस होता है, अंधी चलती है, फिर रिश्वतों की तरकीबें होती है। रिश्वत, जिन सीटों पे रिश्वत मिलती है ना, वो सीट हासिल करने के लिए भी रिश्वतें देनी पड़ती है। जी हाँ, रिश्वत खोर बनने के लिए पहले रिश्वत खोरों को हड्डियां डालनी पड़ती है इन कुत्तों को, तो फिर जाकर वो कहीं वो ऐसी जॉब मिलती है। और बाद में भी इनके सबके हिस्से बटे होते हैं, तरकीबें होती हैं, इतना मिला तो इतना परसेंट इसका। ये खासकर थानों में ये तरकीब ज्यादा होती होगी
ये बहुत मतलब बुरी हालत। जब भी तो जो गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, अमन पारा पारा हुआ पड़ा है, हर चीज में रिश्वत, इतनी मिलावट वाले माल, इतनी चीजें, ये सब के कानून बने हुए हैं, लेकिन अमल इसलिए नहीं हो रहा कि रिश्वत है, वरना तो मतलब सब सीधे हो जाए। ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम है हमारे यहाँ, क्या मतलब वो रिश्वत, वरना मजाल है कि कोई मतलब गड़बड़ कर जाए। बात जगहों पे देखा है, मतलब जिस मुल्क में मैं हूं, अगर गाड़ी भी गलत पार्क कर गई, पार्क कर दी, पुलिस वाला आएगा और सलाम करेगा, आपको बोलेगा कुछ भी नहीं, और ना गुस्सा करेगा ना झाड़ेगा, सलाम करेगा, एक चिट्ठी लिख के डाल देगा, आप देखोगे तो फिर आपके पांव तले जमीन निकल गई, 500 दिरहम, 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, वो जैसे मतलब जैसा मौका, वो चिट्ठी जो है ना आपका होश उड़ा देगी, नींद बर्बाद कर देगी। तो इसलिए यहाँ ट्रैफिक ऐसा निजाम चल रहा होता है, यकीन माने कोई भूल कर भी गलत पार्क नहीं करता। तो हमारे क्या होता है, जिसकी मर्जी, जैसे कुर्बानी का बकरा नहीं अड़ी कर जाता है, आगे नहीं बढ़ूंगा, तो इस तरह गाड़ियां भी अड़ी करके रोड के बीच में खड़ी कर देते हैं, किसकी मजाल है जो रोके। अच्छा आपको आ गया तो इंसान थोड़ी आएगा, डोगी आएगा तो उसको कुछ दे देंगे, तो दो मिला तो चला जाएगा। ये जनरल बात कर रहा हूँ, सब नहीं होते ऐसे सही भी परफेक्ट भी होते हैं कि जो मतलब रिश्वत नहीं लेते हैं और गाड़ी बंद कर देंगे आपकी। तो यूं फिर भी अल्लाह से डरना भी चाहिए कि इस तरह लोगों के रास्ते बंद कर देना, और ज़ाहिर है कि हुकूक के अम्मा तलफ होते हैं, लोगों को तकलीफें होती है। और इस तरह मतलब ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ये तकरीबन जो है ना, ये हमारे भले के लिए होता है। तो ये पुलिस बोले ना बोले, हमें उसको मतलब निभाना चाहिए, और उसके मुताबिक हम करेंगे तो, वरना ट्रैफिक जिधर देखो ट्रैफिक हमारे यहाँ जाम होती है, और बाज़ औक़ात वजह होती है जाम होने की जो दुरुस्त होती है, बाज़ औक़ात बिला वजह जाम हो जाती है। ये कानूनी कि इसने गाड़ी आगे निकाल ली, इसने आगे गाड़ी खड़ी कर दी, वो गाड़ी रोक के चाय पी रहा है, कोई गाड़ी रोक के गप्पे मार रहा है अपने दोस्त है स्कूटर वाले से, और ट्रैफिक जाम पड़ी, आगे किसी को पीछे पता नहीं है कि ट्रैफिक क्यों रुकी है। ट्रैफिक इसलिए रुकी, एक दादागिर खड़ा हुआ है, ये बातें कर रहा है, हम किसी के बाप से नहीं डरता। इस तरह के लोग होते हैं, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अल्लाह के बंदों को राहत दोगे तो आपको दुनिया आखिरत में राहत मिलेगी। अगर अल्लाह के बंदों को ईज़ा दोगे, तकलीफ दोगे, तो वो ईज़ा आपको मिलेगी कि फिर इसका कोई बदल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, वो जो अभी मसला बयान हुआ उसका नींद में सो जाने का, तो इसके ताल्लुक से हजरत सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह रद्दुल मुहतार वगैरह के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि पूरा कायदा अखीरा, आखिरी कायदा जिसमें अत्तहियात और दुरूद शरीफ भी हम लोग जो पढ़ते हैं, तो कायदा अखीरा सोते में गुजर गया। बाद बेदारी बकदर तशहुद बैठना फर्ज है, यानी जाग आ गई तो जितनी देर में अत्तहियात तो पढ़ लेता है पूरी, उतनी देर बैठना फर्ज है। और वैसे असल कायदा जो फर्ज है ना, वो यही है कि अत्तहियातों का हर हर्फ हम पूरा पढ़ लें। तो बाद बेदारी ने जागने के बाद बकदर तशहुद बैठना फर्ज है, वरना नमाज ना होगी। यूं ही क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद में अव्वल से आखिर तक सोता ही रहा तो बाद बेदारी इनका इआदा यानी इनका लौटाना फर्ज है, वरना नमाज ना होगी। और सज्दे सहव भी करे, लोग इसमें गाफिल हैं, खुसूसन तरावी में, खुसूसन गर्मियों में। बहार शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा 515, हिस्सा 3 पहली जिल्द हिस्सा 3 सफ़ा 515 दावत इस्लामी का जो मकतबुल मदीना का है उसके ये हवाला है इसका। तो सजदे सहू मैंने नहीं कहा था, तो सजदे सहू भी करना होगा, ये वहां एडजस्ट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह उल करीम।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। निगरान शूरा भी हमारे साथ बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे में है, सलाम भी अर्ज़ कर रहे हैं। और एक बात फरमा रहे हैं कि जो अभी आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि वो पुलिस वाला आता है, वो पर्ची देता है, तो साथ में मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि इस तरह का जो मामला है तो इस पे आपको ये पेनल्टी या जो भी लगी है वो भी आपको मिली है। अच्छा, दूसरा निगरान शुरा ने एक बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाई कि आपने जिस तरह अभी फरमाया है दावतों का और तोहफे में जो रिश्वत का, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें इस बारे में इल्म सीखना पड़ेगा कि ज़ाहिर मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिस तरह आपने मुख्तलिफ महकमों का फरमाया। तो अगर किसी की कोई पोस्ट है तो उसको अपने मातेंदों के साथ जो है वो दावतों में या तोहफे लेने देने में कुछ मामला करना है, तो ये सब सीखना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है फैज़ान सुन्नत, तो उसका एक चैप्टर है आदाब ताआम, तो पेज नंबर है 540। तो इस पेज नंबर 540 से जो है इसका पूरा चैप्टर पर अमीर अहले सुन्नत ने तोहफा कब रिश्वत होता है इस मौजू पर बड़ा प्यारा तहरीर बयान की है। तो जो भी इस तरह की कोई पोस्ट पर हैं, कोई ओहदे पर हैं, तो उन्हें ज़रूरी इसका मालूमात हासिल करनी चाहिए, इल्म हासिल करनी चाहिए। माशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का घरेलू इलाज, नक्सीर का घरेलू इलाज, अल्लाह चाहे तो ही शिफा मिले। कद्दू शरीफ 50 ग्राम, खीरा 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, रोजाना सुबह शाम इन सबको एक गिलास पानी में ग्राइंड करके छान कर बगैर छाने बेहतर पी लीजिए। खाली पेट पीना बेहतर। मुद्दत ता उसूल शिफा, बच्चों के लिए कि 5 ता 10 साल आदि खुराक, और सहूलत यह कि मर्द औरत हर मौसम आदि खुराक, और सहूलत यह कि मर्द औरत हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये इलाज करें या ना करें, ये परहेज, ये इलाज करें या ना करें, नक्सीर के मरीज के लिए गर्म तासीर वाली चीजों और गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। दीगर फवाइद, हाथ पांव में या पेशाब में जलन, मियादे में तेजाबियत, या जिनको गर्मी ज्यादा लगती हो, ये सब भी इस घरेलू इलाज से फायदा उठा सकते हैं। ताकीद, हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से कीजिए। या नक्सीर इसको बोलते हैं, जैसे कोई आपने देखा होगा कि बाजों को नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है, तो ये इसकी अलामत है, इसकी नक्सीर फूट गई है। बाज़ वक़्त लड़ाई में भी वो लड़ाके जो होते हैं वो सर मारते हैं, जिसको टक्कर मारना बोलते हैं, उसको टक्कर मारते हैं नाक पर, तो इससे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये नक्सीर फूट गई इसकी, तो यूं खून बह रहा है। तो बाज़ों को ये मरज होता है, गर्मियों में खासकर ये बढ़ जाता है, या गर्म चीज़ें खा ली, जैसे अभी मैंने आपको परहेज़ी भी बताई, तो ये ज़्यादा खा ली, तो इस तरह भी मतलब ये नक्सीर जो है ना इसकी फूट जाती है और खून आना शुरू होता है। और ये जो खून नाक से बहकर निकला, ये बह रहा है, ये है भी नापाक। हाँ, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
बापा जान आपसे ये सवाल है, स्प्रे से वुजू हो जाएगा? अल्लाह अल्लाह, स्प्रे से वुजू हो जाएगा? इसमें ऐसा है कि स्प्रे से वुजू, स्प्रे करने से वुजू होना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अगर खाली यूं स्प्रे कर लिया और यूं मल लिया तो मलने से तो वुजू होगा नहीं। वुजू में 4 फर्ज हैं। ये पूरा मुंह मतलब कि टिकली पूरा जो है ये धोना होगा, दोनों हाथ, ये उंगलियों के नाखून से लेकर कोनी समेत ये 2, पाँव पूरे टखने समेत धोने, ये 3 फर्ज, दोनों पाँव, एक फर्ज में दोनों पाँव शामिल है। और फिर सर का चौथाई मसा, चौथाई सर का मसा, ये भी फर्ज है। मसा उसको कहते हैं कि पानी की तरी पहुंच जाए। तो स्प्रे अगर सर पे किसी ने छिड़का तो मसा तो उसका हो गया, समझे, लेकिन धुलना बड़ा मुश्किल है। धुलने में ये कि हर हिस्से पर, सपोज करो कि आपको हाथ स्प्रे से धोना है, आप ये मारते रहे स्प्रे को, ठीक है ना, अब मार के छोड़ दिया आपने तो एक आध कतरा टपक गया, तो ये काम नहीं चलेगा। बल्कि हर हिस्से से जो उज़्व धोना है उसके हर हिस्से से, हर रुएं से, रुएं की नोक से, समझो, ये सब जगह से कम से कम 2-2 कतरे बह जाएं तो ये फर्ज अदा होगा। 2 कतरे नहीं बहे, इतना नहीं पानी डाला, बहाया, तो फिर वो उज़्व धोना नहीं पाया गया, तो अब ये कि ये वुजू ना हुआ। अच्छा, तो यूं अगर किसी ने स्प्रे पर बहुत एहतियात की और ये सब जगह इस तरह स्प्रे मारा कि चलो भाई वो बह गए कतरे 2-2 बिल फर्ज, अगरचे मुश्किल है ये, तो फर्ज अदा हुआ। सुन्नतें, इनका क्या करोगे? कुल्ली हल्की जड़ तक, दांतों की करवटों, ये गाल के अंदर के सारे हिस्से, जबान के ऊपर नीचे जो भी जाहिर हिस्से हैं, सब के सब कुल्ली में धुलना, वुजू में कुल्ली में धुलना सुन्नत। और गुस्ल, जब गुस्ल में फर्ज, इधर नाक में नरम हड्डी तक सूंघ कर पानी चढ़ा जाता है, तो नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना ये भी सुन्नत मुअक्कदा वुजू में, और गुस्ल में फर्ज। स्प्रे से इन सुन्नतों का क्या होगा? फिर 3-3 बार धोना, जिन जैसे हाथ धोना है, मुंह धोना है, पाँव धोने, तो ये सब 3-3 बार धोना, ये भी सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा ही है। कुल्ली और नाक का जो मैंने आपको बताया ना, भी सुन्नत मुअक्कदा, ये हाथ पाँव मुंह जो धोने का ये 3-3 बार, ये सब सुन्नत मुअक्कदा है। ये सब छूट जाएंगे स्प्रे में, इनका पूरा इम्कान है कि ये छूट जाएंगे। इस तरह स्प्रे इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि वुजू प्रॉपर तरीके पर जो किया जाता है उसी के मुताबिक किया जाए। या सैयदी, ये सोशल मीडिया के जरिए सवाल आया है कि अगर हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सैयदी सोशल मीडिया के जरिए सवाल आया है कि अगर कोई तवाफ के दौरान किसी को वज़ू की हाजत हो गई या हरम शरीफ में रश में बैठा हो और मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में है, अब वो जगह छोड़कर जाना, वज़ू खाना दूर है, वापस भी आना है, तो क्या वो वहीं बैठे बैठे वहां भी स्प्रे से वज़ू नहीं कर सकता? तवाफ करते करते अगर स्प्रे करेंगे आप तो लोग मसला समझा देंगे आपको। शुरू करके उस पर उड़ा, शुरू करके उस पर उड़ा, तो वो सारे मसला समझाना शुरू कर देंगे और शुरती आकर कांडा पकड़ेगा, बोला हाँ तुझे मसला समझाते हैं, ये ले जाएगा आपको। तो ऐसे भूल करिएगा मतलब। और फिर इस तरह चलते चलते जो आप वुजू करेंगे और वुजू टूटा हुआ है तो इतना हिस्सा जो आपने तवाफ किया वो तो बेवुजू किया, इसमें भी मसला खड़ा हुआ। तो इस तरह या मस्जिद हराम शरीफ में सब स्प्रे लेकर शुश करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल पुलिस की फौज आ जाएगी, ये तो हो क्या गया है, ये कर क्या रहे। तो ऐसा कोई धंधा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों बार अगर कहूँ तो मुबालगा तो 20 बार हरम शरीफ की हाजिरियों से मुशर्रफ हुआ हूँ, और आप भी हुए हैं, साहिल भी हुए हैं। हमारा भी वुजू का मसला होता है। तवाफ में मेरे तो कई बार ऐसा होता था कि एक तवाफ में एक वुजू करना, सही में वुजू करना तो जाता था,
और ये जितनी हम मशक्कत करेंगे, जाएंगे आएंगे, सवाब मिलेगा इसमें भी। करना प्रॉपर वुजू है। कभी तस्वुर भी नहीं था कि मैंने कोई शावर से इस तरह ये शावर किया, इसको स्प्रे से वुजू करने का ज़हन में आया हो, न कभी किया है। और फिर मस्जिद हराम की आप बात कर रहे हैं यार, वैसे जनरली भी मस्जिद में, मस्जिद के फर्श पर वुजू करते हुए जो पानी होता नहीं, मुस्तअमल पानी कहलाता है, इस्तेमाल शुदा। तो ये पानी का कतरा, वुजू के पानी का कतरा फर्श मस्जिद पर गिराना, ये वैसे ही मकरूह तहरीमी है, नाजायज और गुनाह है। इससे कैसे बचेगा? ये स्प्रे वाला है बड़ा ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की मतलब यूनिक चीजें आम ना की जाए, और इस तरह मतलब मुसलमानों को गुनाहों में डालकर अपनी आखिरत को दाव पे ना लगाया जाए। इनको हम सहूलत देने बैठे, हम सहूलत मतलब देना चाहते ना मुफ्तियान किराम से। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर दरसे निज़ामी किया हुआ आलिम और अल्लामा नहीं होता। ये मतलब बाकायदा जो मुफ्ती होते हैं ना, जो दारुल इफ्ता में बैठे हैं, फतवा नवेसी करते हैं, ये ज्यादा तजर्बाकार होते हैं। तो उनसे मालूम करे, मेरी बातों से इख्तिलाफ नहीं करेगा कोई भी मुफ्ती होगा कि बात तो सही कहता ही है कि सुन्नतें छूट जाएंगी, मतलब सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए स्प्रे से वुजू ना किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इल्लल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू खत्मे रुसूल की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। हज का शरफ हो बेटा या रब्बे मुस्तफा, मीठा मदीना बेद का, मीठा मदीना बेद का या रब्बे मुस्तफा। या खुदा हज पे बोला के मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। आपको हज के एग्जाम बताऊंगी। हज के 3 एग्जाम है। नंबर 1 हज इफराद, यानी सिर्फ हज का नाम बांधा जाए। नंबर 2 तमत्तु यानी पहले उम्रे का एहराम बांधा जाए। उम्रे के एहराम से फारिग होने के बाद हज का एहराम बांधा जाए। नंबर 3 किरान यानी उम्रा और हज दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा जाए। इसमें उम्रा करने के बाद एहराम की पाबंदियां खत्म नहीं होती बल्कि बरकरार रहती हैं। प्यारे पापा जान, मेरी उम्र 7 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह पाक मेरे अहले सुन्नत को सेहत व आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आए इनकी प्यार हो जाए। या अल्लाह या अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुल हमीद अत्तारी है। अमीर सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी फलाही इदारे या कोई जमात वगैरह अगर कोई बाइक, लैपटॉप या दीगर कोई चीज़ वो अगर किसी को दें तो वो
بندہ جو اہلیت نہیں رکھتا وہ کوئی بہانہ بنا کر اگر وہ چیز حاصل کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ اگر وہ حقدار نہیں اور اپنا حقدار ہونا ثابت کرے گا تو ذرا جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے دھوکہ دے کر لیتا تو گناہ گار ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سید ارحم ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، ایک کتاب میں تھا حضرت الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں، نبی مرسل سے مراد کیا ہے اور مرسلین انبیاء کرام سے کیا مراد ہے؟ نبی مسلم بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی، تو حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں، اور ابھی تک انہیں ظاہری طور پر وفات پیش نہیں آئی۔ 4 انبیاء کرام ظاہری طور پر ابھی وہ وفات انہیں پیش نہیں آئی، تو ایک تو ہے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء جو ہے نا یہ خشکی پر ہیں، زمین پر، اور 2 اوپر ہیں آسمانوں پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام، یہ 4 انبیاء کرام۔ اولو العزم مرسلین، تو اس میں غالباً یہ رسولوں کے لیے کہ اولو العزم مرسلین یعنی کہ بہت زیادہ عزت والے عظمت والے رسول، تو ان کی تعداد ہے 313 رسولوں کی، کل رسول 313 ہے۔ نبیوں ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہا جاتا، کم و بیش نبیوں کی تعداد اللہ جانے، یہ عوام بولتے ہیں 1,24,000، یہ غلط بولتے ہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ حقیقت میں مطلب یہ کہ کتنی تعداد ہے وہ رب ہی جانتا ہے نبیوں کی، رسولوں کی 313۔ جو نبی آئے ان کو وحی آئی بے شک، لیکن اس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، تو وہ نبی کہلاتے ہیں، اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن پر وحی آتی ہے اور تبلیغ کا ان کو حکم دیا گیا، وہ رسول کہلاتے ہیں۔ اس میں کوئی غلط فہمی مجھے ہوئی ہے تو مفتی صاحب اصلاح فرما دیجیے۔ اولو العزم رسول کی تعداد آپ نے ارشاد فرمائی کہ 313 ہے، شاید ٹوٹل رسول کی آپ تعداد ارشاد فرما رہے ہیں کم و بیش، تو اولو العزم تو وہ 5 رسول۔ جی اولو العزم ان کی تعداد کم ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسول ہیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تعداد بھول گیا، ان کے کم ہے تعداد، 7 یا اتنی ہے۔ 5 ہے غالباً، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا 5 ہے، جی۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے پاپا جان، ابھی آپ نے بد دعا کے متعلق مدی پھول ارشاد فرمائے، اگر اسی طرح سے ماں اپنے بچوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بد دعا دے تو کیا اس صورت میں کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں یہ بھی ایک شعبہ ہے، بعض عورتیں اتنی جذباتی ہوتی ہیں کہ پھر اب بچہ مانتا نہیں ہے، تنگ کرتا ہے تو اپنے آپ کو کوسنے دیتی ہیں، میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو میرا یہ ہو جائے، یہ کرتی ہیں اس طرح۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی نادانی ہے کہ اگر جو کہا اور وہ ہو گیا تو کتنی بڑی بری بات ہے یہ، تو اپنے آپ کو بھی اس طرح کوسنے نہیں دینی چاہیے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये उलुल आज़म रसूल, यानी जब भी उलुल आज़म रसूल कहा जाए तो इनसे यही पांचों रसूल मुराद होते हैं, और वो ये हैं। नंबर एक, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर दो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नंबर तीन, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम। नंबर चार, हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम। और नंबर पाँच, हज़रत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम। ये वहाँ एडजस्ट कर दीजिएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में दुनिया के कई मुल्कों से और हज़ारों शहरों से हमें उम्मीद है कि आशिकान रसूल जमा हैं। जो हमारे पास तादाद पहुंची है जिन मुल्कों की और जहां से जमा हैं, उनमें से जामियतुल मदीना सैदपुर बांग्लादेश, स्टैटफोर्ड लंदन, चिटागोंग बांग्लादेश, जामियतुल मदीना नेपालगंज यूके, लंदन वेम्बले, डर्बी यूके, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए, ब्रैडफोर्ड यूके, मिलान इटली, जामियतुल मदीना मदरबारी बांग्लादेश, भैंस कॉलोनी कराची, जामियतुल मदीना चिन्योट पंजाब पाकिस्तान, जिना टाउन फैसलाबाद पंजाब, फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर, मदरसुल मदीना डिफेंस लाहौर, सखर सिंध, शेरा कोट इकबाल टाउन लाहौर, कुंजा ज़िला गुजरात पंजाब, ताज बाग लाहौर, हैदराबाद, हाफिज़ाबाद पंजाब, डेरा इस्माइल ख़ान और जहाँ जहाँ शिकान रसूल जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीख रहे हैं और अल्लाह की रहमत से किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जलवा भी लूट रहे हैं। याद रहे कि सैयदी गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो औलिया किराम के सरदार हैं, आप फरमाते मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। उलमा भी फरमाते हैं कि ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया यह है कि किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दे दिया जाए। अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान है और हमने देखा है कि माशाअल्लाह जब इनसे कोई मुरीद होता है, इनके ज़रिए गौसे पाक के मुरीदों में शामिल होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां करने का जज्बा बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुरीद होने के बाद नेकियों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह राग़िब हुए। तो आज बड़ा बेहतरीन मौका है, अमीर अहले सुन्नत में मुरीद करेंगे और इंशाअल्लाह आप जब मुरीद फरमाते हैं तो मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि अपने सीने को राज़ों का कब्रिस्तान कैसे बनाएं, इसके बारे में कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि किस तरीके से अपनी ज़ुबान और दिल को कंट्रोल किया जाए कि अपने राज और अपनी जो खुफिया बातें हैं वो दूसरों के सामने ज़ाहिर ना। ये है बड़ा मतलब है कि ये भी प्रॉब्लम है कि बाद औक़ात बंदा उसे रहा नहीं जाता, अपनी कमज़ोरियाँ दूसरे को बयान कर देता है और अगला जो है हावी हो जाता है। किसी का राज उसको पता चल गया तो उसका पेट चढ़ जाता है और इसको ये उगलना शुरू कर देता है और इस तरह मतलब ये कि मसाइल खड़े होते हैं। वो कहा गया है बशर राज़े दिली कहकर जलील व ख़ार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। फूल से जब खुशबू निकल जाएगी तब वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये इसलिए अपने दिल के राज किसी को बताए ना जाए। इसमें इस तरह के जैसे मैंने जो दो चार जुमले कहे, इस तरह की चीज़ें जहन में लाने से बंदा जो है अपना मजबूत होता है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि वो राज किसी को कहना गुनाह होता है। मसलन यार आज तो मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब अगर ये कज़ा अपनी कोताही से हुई है और ये कह रहा है कि यूं मेरी नमाज कज़ा हो गई, तो ये तो गुनाह का इज़हार कर रहा है। इसी को तो बेबाकी कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। तो गुनाह का इज़हार ये गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। जी हाँ, लेकिन ये आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग अपने गुनाहों का इज़हार सरे आम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कह रहे होते हैं, अरे मैंने उसको घूंसा मारा, यूं कर दिया, उसको लात मारी, यूं कर दिया। अब अगर उसको जुल्म ने मारा है तो एक तो जुल्म आपने किया, अब उस जुल्म का इज़हार दूसरे पर कर रहे हैं, मैंने जुल्म किया। मैं अपनी होशियारी या अपनी वो बताने के लिए
ये बड़े गुनाह है। कि गुस्से में किसी को मार दिया, उसने गुनाह तो किया इसने, लेकिन इसका इजहार क्यों कर रही है? इसी तरह लोग मतलब ये नहीं गए, जैसे दीनी माहौल में आ जाएंगे तो फिर ये अपने कारनामे सुनाते हैं। आपको पता है पहले तो मैं जुआ में इतने हार जाता था, अब तो मेरी बचत हो गई है, दीनी माहौल में आ गया हूं मैं। रात रात भर वो गंजीफा खेल रहा था, ताश खेलता था, लूडो खेलता था, फुला करता था यार, गालियों की आदत जाती ही नहीं थी, अब निकल गई मेरी आदत। अब ये जो बयान जो कर रहा है, ये मकसद क्या है करने का? अगर बयान करने का वाकई 100% मकसद ये है कि दावत इस्लामी का ऐसा माहौल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुधर गया उसमें, तो आप लोग भी आ जाए दावत इस्लामी में, तो अगर इस तरह के गुनाह या जो भी गुनाह होंगे की आदत निकलेगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, लेकिन हर वक्त ये नियतें होती नहीं है, बताते हैं इसको मारा, उसको जो कत्ल किया होगा, ये तो जैसे मतलब बादलों में परवास कर रहा होता है, यार मैंने तो बंदा मारा है, मैंने तो बंदा कत्ल किया है, से कारनामे मुझ में तो जिंदगी गुजर गई ना, तरह तरह की बातें लोग अपनी बता रहे होते हैं। तो पुलिस वाले को मारा, समझे? तो इस तरह की मतलब क्या मतलब बताने की हाजत क्या है? फुला को मारा, शराबी था, हेरोइनी था, तो एक भी नमाज नहीं पढ़ता था, यार मैं तो जुम्मे की भी नहीं पढ़ता था। तो अब अगर ये बताने का मकसद ये है कि वो दावत इस्लामी या दीनी माहौल की वो अजमत बताना चाहता है, तब तो जरूरतन इजाजत मिलेगी। लेकिन ये गौर कर ले, 112 मरतबा सोच ले कि इसमें अपनी जरा होशियारी तो नहीं कर रहा, मैं यूं था, मैं यूं था, मैं यूं था, लोग मेरे से डरते थे, देखकर मुझे गली बदल देते थे, मैंने जैसे कि मैं शेर बबर था, जंगल का बादशाह था। तो इस तरह की होशियारियां ना करें, अल्लाह के आजिज बंदे बने, गुनाहों का इजहार। तो ये सारे राज हैं जो कल क़यामत के दिन इनका खोलना जो है ना, ये महंगा पड़ जाएगा। अगर रब नाराज हुआ तो कहीं के नहीं रहेंगे। यूं मतलब सीना जो है राजों का कब्रिस्तान बन जाए, ये इन्होंने जो मुहावरा लिया ना, तो ये राजों का कब्रिस्तान, जो भी राज आए वो अंदर दफन हो गए। हर बात दूसरे को बताने वाली नहीं होती, ना घर की बातें बताने वाली होती हैं, घर की बातें बताते हैं। मेरे पास मैंने चंद बार ऐसा हुआ है खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, मेरा बाप शराब पीता है, मेरी माँ मेरे बाप से लड़ती है, हाल बताएं, तो मैं कभी कभी क्या ये मदनी चैनल पर लाइव चलाएं आपका सवाल, फिर आपके माँ बाप जो आपस में सुलह करके जो दोनों मिल गए आप पर टूट पड़ेंगे तो क्या करोगे कि वहां जाकर तुमने हमारा डंका बजा दिया। तो यूं मतलब पोले खोलने में देर नहीं लगती। मेरा बड़ा भाई शराब पीता है, अरे भाई शराब तो पीता है लेकिन पिस्टन भी रखता होगा ना, पता चलेगा कि तुमने जाकर वो दावत इस्लामी के उसमें हजारों के मजमे में जाके सवाल दागा है, तो ये नहीं वो गुस्से में निकल कर पिस्टन निकाल ले। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें होना जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह के पोले खोलने वाला मुझे मतलब हुए हैं सवाल, अभी कभी कभी हो जाते हैं, तो फिर मैं सवाल रुकवा लेता हूँ कि ये चलाना मत, मर जाएगा यार ये सवाल कर रहा है, खानदान में झगड़े हो जाएंगे। तो कहाँ क्या बोलना चाहिए अपने को उमूमन भान होता नहीं है, इसका शऊर नहीं होता, और हम लोग बोल देते हैं और फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब शराब से भी तौबा का बोलना है तो यूं बोल सकते हैं कि मतलब मेरा भाई शराब पीता है, ये कहने की क्या जरूरत है? हमारा एक जानने वाला या हमारा एक अजीज शराब पीता है तो इसके लिए कोई वजीफा या दुआ, तो यूं मतलब ये कि थोड़ा गली तंग कर दे कि बंदा असली तक पहुंच ना सके, बात भी बन जाए। खाली ये जरूरी है कि भाई और छोटा भाई और बड़ा भाई और बहन हुई और दामाद और ये सब बोलना जरूरी है, ताकि ये फिर मजीद आस्ती ने चढ़ाकर आपसे इंतकाम लें। बीवी लड़ाई करती है, यूं भी बोलते हैं, अरे भाई वो ज्यादा लड़ेगी तो पता चल जाएगा तुम वहां बोल के आए हो, इसलिए तुम गए थे वहां।
इसलिए मतलब हिकमत अमली से सवाल हो जिसमें किसी की तरफ, किसी फर्द की तरफ, किसी घराने की तरफ, किसी खानदान की तरफ निशानदही ना हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ देर पहले आपने किसी अदीब से पूछा गया आप राज की हिफाजत कैसे करते हैं? किसी अदीब से पूछा गया आप राज की हिफाजत कैसे करते हैं? उन्होंने कहा मैं इस राज के लिए कब्र बन जाता हूं। बाकमाल लोगों के सीने राजों के दफीने होते हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कुलूबुल अबरार कुबूरुल असरार, यानी नेक लोगों के दिल राजों की कब्रें होते हैं। यानी जिस तरह कब्र मस्जिद को अपने अंदर छुपाए रखती है, इसी तरह नेक लोग जो हैं वो राजों को अपने दिल में महफूज रखते हैं। हवाला एहयाउल उलूम जिल्द पहली पेज नंबर 84, जिल्द वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 84। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आपने रसूलों की तादाद के हवाले से कुछ देर पहले इरशाद फरमाया था, जिस तरह नबियों की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं, इसी तरह रसूलों की तादाद के हवाले से भी मुख्तलिफ रिवायात हैं। तो इस एतबार से जो है कोई तादाद क्या रसूलों की या नबियों की हम मुअय्यन कर सकते हैं, या वैसे ही बग़ैर मुअय्यन किए तादाद को इजमालन सब पे ईमान लाना है? नबियों की तादाद तो मुअय्यन नहीं की गई जिस पर कोई सी मजबूत रिवायत हो। रसूलों की तादाद के ताल्लुक से जो मैंने बताया 313 रसूल, तो वो तो सिरातुल जिनान में है, वैसे तफसीर सिरातुल जिनान में रिवायत के मुताबिक है जी, वो भी एक रिवायत के मुताबिक है। इसी तरह रसूलों की तादाद में और भी रिवायात हैं, तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नबी और रसूल, अगर वो रिवायत इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नबियों और रसूलों वो अल्फाज तो सिरातुल जिनान के याद नहीं है मुझे। हो सकता है ये वो कि एक रिवायत के तहत 313 है, ये भी हो सकता है, जी जी याद नहीं है मुझे। वैसे बयान यही किया जाता है और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी इस पर जारी हो चुका है कि तादाद के हवाले से तो जवाब यही दिया गया है कि नबियों और रसूलों की तादाद इस तरह मुअय्यन नहीं कर सकते। रिवायात दोनों में मुख्तलिफ हैं। नबियों की तादाद के हवाले से भी जैसे 1,24,000 तो 2,24,000 इस तरह की रिवायात हैं। इसी तरह रसूलों की तादाद के हवाले से 313 भी हैं, इसके अलावा भी हैं। तो इसलिए कमो बेश जितनी भी हैं, इजमालन यही उलमा ने कहा कि वाजिब है कि तादाद मुकर्रर किए बगैर इजमालन जो है वो सब पर ईमान लाया जाए, ताकि तादाद मुअय्यन करने में ये ख़तरा है कि किसी नबी पर ईमान ना ला सके या कोई ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए तादाद को मुअय्यन करना ये दुरुस्त नहीं। जी भैया फरमाया, तो वो वहां से एडजस्ट कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा जो मैंने 313 कहा। तो मैं मतलब रिवायत के मुताबिक ये मुझे याद नहीं है, अलबत्ता 313 का याद है। तो खैर वो निकाल देते हैं इसको इंशाअल्लाह करें। तो रसूलों की और नबियों की तादाद की मुख्तलिफ रिवायात हैं और इसमें मतलब कोई फिक्स फिगर नहीं है, लिहाजा मतलब हमें तमाम अंबिया किराम और रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है। जितने भी अल्लाह ने नबी भेजे, रसूल भेजे, सब पर मेरा ईमान है, बस ये होना चाहिए। तादाद फिक्स ना की जाए, ये जुमले वहाँ शामिल कर दीजिएगा और बाकी जो था वो निकाल दीजिएगा इंशाअल्लाह करीम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے محمد عثمان صاحب ہیں بھاولپور سے کہ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جو لوگ قرآن پاک درست نہیں پڑھتے، جب ان سے کہا جائے کہ درست سیکھنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہمیں استاد صاحب نے ایسا ہی پڑھایا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، استاد صاحب نے اگر ایسے پڑھایا ہے، اول تو یہ ایسے پڑھایا ہے، اس کی گارنٹی کیا؟ علی آنے کے بعد لوگ دوسروں کا کندھا استعمال کر لیتے ہیں اور وہ ہوتا غلط ہے. استاد صاحب صحیح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بھائی یہ جو ہوتا نا، اس میں ٹپڑ اتنی ہوتی نہیں ہے کہ یہ صحیح پڑھ سکے، تو یہ بوکھلا کر کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو استاد نے پڑھایا ہی یوں ہے، معاذ اللہ. تو اس لیے مطلب وہ ابھی مجھے صراط الجنان کا حوالہ ملا تھا جس میں لفظ روایت نہیں، لیکن پھر یہ ڈیلیٹ کر دیا. تو اسلامی بھائی جنہوں نے بھیجا تو مجھے واپس بھیج دیں، اگر وہی لفظ تو لفظ ہے تو میں انشاءاللہ وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح استاد پر ڈالا نہ جائے، تو نمک حرامی ہوئی نا. ایک تو اس کو سکھائے اتنا، محنت کرے، کوشش کرے، اور بدنامی کا داغ بھی اپنے اوپر لے. یہ جو انبیاء کرام وہ مفتی صاحب توجہ فرمائیں، یہ تفسیر صراط الجنان سورہ بقرہ 177 آیت. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی صحیح تعداد اللہ تعالی جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں. حوالہ تفسیرات احمدیہ البقرہ تحت الآیہ 177 صفحہ نمبر 47-48. اس کو دیکھ لیجئے پھر کہ اس میں صراط الجنان میں فکس تعداد کر دیے 313 کی رسولوں کے لیے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار. مدینے کی سختی پر صبر کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا. یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مدینے کی زیارتیں پڑھ یا سن لے، اسے مدینہ پاک کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما اور اس کی ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مدینے سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مدینہ شریف کے 12 نام، مدینہ طیبہ کی تکالیف پر صبر کی فضیلت، مدینہ شریف کی 17 خصوصیات، مسجد نبوی شریف میں نماز کے فضائل اور بہت کچھ. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateshlami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4 جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 4 دنیا بھر میں اسلامی بھائی 14,28,301 1,428,301 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,67,607 767,607 مجموعی کارکردگی 21,95,908 2,195,908
शोभा मामनत बराए इस्लामी बहनें पाकिस्तान। रिसाले का नाम तफसीर नूरुल इरफान से 85 मदनी फूल किस्त 4। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। तादाद के एतबार से नुमाया डिवीजन शरीफ 1446 के नफली रोजों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 31,172 31,172। इस्लामी बहनों की तादाद 7,340 7,340। टोटल नीयतें 38,512 38,512। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जुलहज्जा शरीफ भी तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह। आइंदा बुध से इंशाअल्लाहुल करीम मंगल से रोजाना मदनी मुज़ाकरे की आइंदा मंगल 27 बुध मई से रखते हैं। ठीक ठीक। क्या इसका कोई ऐलान जारी हो गया है? नहीं, आज ही करना है। तहरीरी जारी हो गया ऐलान? जैसा अभी ऐलान करना है, जैसे आप फरमाएं। तो बुध से शुरू करते हैं। बुध को, चांद का ज्यादा चांस बुध को ही है। ठीक। फिर अल्लाह की मर्जी है, मंगल को अगर हो गया तो जैसे बुध से बाकायदा मदनी मुज़ाकरों का आगाज इंशाअल्लाह करीम रात को उमूमी खुसूसी और इंशाअल्लाह सबकी तरकीबें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। और इसमें चूंकि ये माह हराम है और माह हराम के अपने फजाइल हैं, आप कुछ बयान करेंगे फजाइल हाजी अमीन? जी मैं कर देता हूँ, जैसा फरमाए। आप कर दीजिए जी। आई करी जी। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन 10 दिनों यानी जुल्हिज्जा के जो इब्तिदाई स्टार्ट की जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों से ज़्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह पाक को महबूब नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना राह खुदा में जिहाद? फरमाया, और ना राह खुदा में जिहाद मगर वो कि अपनी जानो माल लेकर निकले फिर इनमें से कुछ वापस ना लाए। यानी सिर्फ वो मुजाहिद अफजल होगा जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हो गया। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक को अशरे जुल्हिज्जा यानी जो 10 डेज हैं जुल्हिज्जा के, फरमाया अल्लाह पाक को अशरे जुल्हिज्जा से ज़्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों और हर शब का क़याम शबे कद्र के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 दिन जो हैं वो फैज़ान मदीना आ जाए तो इंशाअल्लाहुल करीम 10 दिन आपको एतिकाफ़ का भी सादत मिले, इसमें मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला होगा और साथ ही वो कसीर तादाद में आशिकान रसूल रोज़ा भी रखेंगे तो सहरी का भी यहाँ रोज़ाना सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का अमल भी होगा। और इंशाअल्लाह करीम नीयत है कि इन दिनों में बाकायदा कोर्स भी कराया जाए ताकि जो आने वाले हैं वो यहीं दिन में कोर्सेज़ के ज़रिए जो है वो इल्म दीन हासिल करें। जी अमीर रसूल। माशाअल्लाह। इसमें 10 दिन के अंदर जिनसे हो सके वो कम से कम 7 रोजे रख लें। वैसे तो 9 रोजे रखने हैं और भी 10वीं का तो रोजा रख नहीं सकते, जायज नहीं है। 9 रोजे रख लें, हर रोजे का साल भर के रोजे के बराबर सवाब अभी आपने सुना। 7 रोजे हमने ये फर्स्ट कैटेगरी, 5 रोजे सेकंड कैटेगरी और 3 रोजे ये थर्ड कैटेगरी। ये अपनी तंजीमी एतबार से शोबा इस्लाह अमाल को आप इसकी कारकर्दगी दें और कम से कम 3 रोजे तो रख ही लें। 3 रोजों की भी फजीलत बहुत है कि जो इन पूरे माह हराम में जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 रोजे रखे तो उसको 2 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रिवायत ये है। एक रिवायत एक मुतलक है कि पूरे माह हराम में जो 3 रोजे रखे तो उसके पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ इस तरह की रिवायत होती है कि पिछले
पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये छोटे गुनाह होते मुराद, सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। 3 रोजे तो रख लें, ये पूरे महीने की मतलब है। तो हम ऐसा करते 10 दिन के बजाय पूरे जुल्हिज्जा शरीफ में इसको तकसीम तोसी कर देते हैं। तो पूरे महीने में 7 रोजे रखें तो ये मुमताज बेस्ट। 7 के बजाय 5 रोजे रखें तो बेस्ट, और 3 रोजे रखें तो गुड। और रोजाना 10 दिन में 700 मरतबा दुरूद शरीफ की भी अगर तरकीब हो जाए तो मदीना मदीना, तो इसकी कारकर्दगी भी दें। इस तरह बहनें भी अपने शोबे में दें इस्लाह अमाल के, इसकी कारकर्दगी अपने इस्लाह अमाल के शोबे में दें। तो इंशाल्लाह इसकी भी फिगर जो है, अब तो रोज बयान होंगे इंशाल्लाह, अभी से दे दें तो चांद रात से ही फिगर बयान शुरू हो जाएंगे होना। तो इससे तरगीब मिलती है कि वाह भाई इतने सारे, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी शामिल हो जाता हूं। जैसे अभी आपने ज़िकात शरीफ का गालिबन 31,000 प्लस रोजेदार की नियतों का अभी आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शबे कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल अल हलीमुल करीम, करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्ला अंता अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक व अल्लाहुम्मा बिहम्दिका बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, वज़ू में 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है, बताइए ये कौन सी सुन्नत है। सवाल नंबर 2, कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अभी तक ज़ाहिरी वफ़ात नहीं आई, सिर्फ तादाद बताइए। सवाल नंबर 3, जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अभी तक ज़ाहिरी वफ़ात नहीं आई और वो आसमानों पर हैं, इनमें से किसी एक का नाम बताइए। इन 3 सवालात के जवाब आप
हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 17 मई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हाजी अपने घर वालों में से कितने अफराद की शफाअत करेगा? जवाब 400 अफराद की। सवाल नंबर 2, किन खुश नसीबों को दुयूफुर रहमान यानी अल्लाह के मेहमान फरमाया गया? जवाब हाजियों को। सवाल नंबर 3, हाजी जमजम रहमतुल्लाहि अलैह का यौम विसाल क्या है? जवाब 21 ज़िकात शरीफ। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते इकबाल अत्तारिया जनावाला, फुज़ैल रज़ा अत्तारी हैदराबाद, सैयद अज़हर अत्तारी जामियातुल मदीना बहरिया टाउन रावलपिंडी, बिनते शौकत गुजरावाला, अली हसन मैलसी, बिनते अब्दुल कय्यूम टंडोजाम, अबू फराज अत्तारी फैजान मदीना कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते अब्दुल कय्यूम टंडोजाम। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु या रब्बल मुस्तफ़ा बतफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक जो नामा अमाल में नेकियां हैं और जो इस्लामी भाई अपनी नेकियां मुझे इसाल करें, इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह पाक इनका सवाब अपने करम के शायान शान हमें अता फरमा और ये तमाम सवाब हमारी जानिब से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा व वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको भी पहुँचा। जुमला अंबिया किराम, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन, तबी ताबिईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, जमी अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीरान करबला, हसनैन करीमैन, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस सय्यदी मुर्शिदी गौस आज़म, इमाम आज़म, गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, इमाम अहले सुन्नत, सदर शरिया, कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, सदरुल फाजिल, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम, दावत इस्लामी के तमाम मरहूम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात को और बिलखुसूस जो अशरा ज़ुल्हिज्जा के होने वाले मदनी मुज़ाकरे में तमाम शिरकत करने और इसमें जो रोज़ों की दुरूद पाक की तहरीक में हिस्सा लेने की जो नीयत करें, ए अल्लाह उनको भी इसका सवाब पहुँचा। मौला करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह पाक हमें नेक बना, परहेज़गार बना, सच्चा आशिक़ रसूल बना। मौला करीम इबादत की लज्जत नसीब फरमा कि इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, है इस्यां में बदमस्त हम या इलाही। या अल्लाह पाक गुनाहों से सच्ची नफ़रत अता फरमा, नेकियों से मोहब्बत अता फरमा। नफली रोज़े, नफली नमाज, या अल्लाह इबादत, नफली इबादत का भी शौक़ अता फरमा। फ़राइज़ को पाबंदी से वक्त पर खुशू और खुजू के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मौला करीम हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा। हमारे माँ बाप को बख्श दे, भाई बहनों, रिश्तेदारों, आइज़ व क़रबा रिश्तेदारों को सब की बख्शिश फरमा। जो हमसे मोहब्बत करते हैं या अल्लाह उन आशिक़ रसूल की बख्शिश फरमा। प्यारे महबूब की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ऐ मौला करीम हमारी बीमारियां दूर फरमा और हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे कर्ज़े दूर हों, बेरोज़गारियां दूर हों, घरेलू लड़ाई झगड़े दूर हों, आपस के प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हमारा मुक़द्दर बना दे। मोहब्बत और प्यार वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारे अखलाक अच्छे कर दे, हमारा किरदार सुथरा कर दे और हमें अपनी पसंद का बंदा बना ले। ऐ मौला करीम जो बे औलाद हैं
ان کو اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما، یا اللہ پاک جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت والی، عافیت والی، دینی خدمتوں والی طویل زندگی نصیب فرما، اور جس طرح ہی چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، مولا تو بس رہنا صدا راضی، مولا تو بس رہنا صدا جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، کرم مجھ پہ یا سید المرسلین ہو، کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، دور رہ کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ
سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, ہنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. او نگاہ کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ, دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ, ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ.